نبی نامہ سے زیادہ میرا یہ نہیں رہا کہ انہوں نے مطلب، لیکن غلام دستگیر سے کتاب کا ہمیشہ رہتے تھے، تو ان کے اندر میں نے ایک بہت ہی صبردار انسان پایا اور ایک شریف النفس انسان۔ ان کے اوپر ایسے ایسے پہاڑ ٹوٹے، ایک مطلب 2 سالوں کے اندر جو ہم لوگوں نے افسر کیا اور اس سے مقابلہ کیے، اور بغیر کسی چھٹی کے تمام جو ذمہ داریاں ہیں جو ان کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے، اس میں کبھی کوتاہی نہیں کی جو میں نے افسر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی حیاتی دے، دونوں کو صحت تندرستی دے۔ خاص بات اس ساتھی کے کہ آپ کو اس بات کا گمان ہوگا کہ سر کا جو کرتا ہے وہ سفید ہوگا، لیکن آپ غلط ہیں، وہ سفید نہیں ہے بلکہ وہ اس پہ ہلکی انگلی ڈالی ہوئی ہے۔ یہ ان کی سادگی ہے۔ اس سادگی پہ کون نمبر جائے خدا؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف لباس سے ظاہری صورت سے جو دکھتا ہے اسی سے ہی، بلکہ آپ مزاجن بھی بہت شریف رہے ہیں۔ ہم کچھ مخصوص لوگوں نے بارہا اس بات کی کوشش کی کہ اس نیلے رنگ میں تھوڑا سا پیلا اور لال رنگ کا اضافہ کیا جائے، لیکن بہت ہی تحریک کو ترغیب بھی دیے، لیکن سر ہم اس میں ہار گئے۔ سر نے ہماری باتوں سے انکار کر دیا۔ بہرحال سب کا اپنا ایک الگ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، ایک الگ اسٹائل ہوتی ہے۔ ہم آپ کے اسٹائل میں کوئی طنز نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی سادگی کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ ایک بہترین معلم کی حیثیت سے ایک تجربے اور مشاہدے میں آئے ہیں۔ آپ نے اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو بھی انجام دیا ہے، اور ایک بہترین معلم کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ خاص طور سے ماضی قریب میں سر بچوں کے لے کر مقابلے کے لیے ممبئی، پونا، موڈیلا وغیرہ جاتے تھے، تو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بچوں کے ساتھ اتنی دور لے کے آنا، ایک باپ کی طرح ان کا ہاتھ پکڑتے تھے اور پکڑ کے لے جاتے تھے، اور اپنے کام ختم ہونے کے بعد بچوں کو ان کے گھر حوالے کرتے تھے۔ یہ بہت ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے احساس ان کی تدریس میں بھی دیکھا گیا۔ زیشتم کا ایک شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل ہے مگر جانے من، ہم نے مانا کہ تغافل ہے مگر جانے من، اختلاف کے آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہم اسٹاف روم میں بہت سارے معاملوں میں، بہت ساری باتوں میں کبھی کبھی ایسا ضرور ہوا ہے کہ کچھ باتوں پہ اختلاف ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی آپ کو اختلاف بہت تھوڑے انداز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اختلاف کے دوران ہی آپ نے ادب و تمیز کو ہمیشہ باقی رکھا۔ میری دلیل خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ میں کبھی یہ دیکھ سکوں کہ غلام دستگیر صاحب جب ناراض ہوں یا جو غصے کی حالت میں ہوں تو کون سے لفظ، یعنی لال اور تال کے کون سے لفظ استعمال کرتے، لیکن یہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ کبھی آپ کو غصے کی حالت میں دیکھا نہیں گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم سبھی کا استقبال کرتے ہیں ہمارے میں۔ اس کے علاوہ غلام دستگیر سر اور میڈم کے آج سپردوشی کا پروگرام ہے۔ غلام دستگیر سر سے ظاہر سی بات ہے میرا زیادہ واسطہ نہیں رہا، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ اتنا میں نے آبزرو کیا ہے، سادگی اور صبر دونوں کا ایک بہت ہی اچھا کمبینیشن اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ غلام دستگیر سر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر کی شخصیت میں سے ایک بات یہ میں کہنا چاہوں گی کہ سر معلم تو ایک اچھے ہے ہی، مگر ایک اچھے والد بھی ہے، کیونکہ میں نے ان کے دونوں ہی بیٹوں کو پڑھایا ہے اور دونوں ہی بچوں کو بہت ہی بااخلاق پایا ہے۔ جبکہ لڑکوں میں اخلاق کی قدر کمی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں،
सीनियर या जूनियर वाली बॉर्डर लाइन नहीं। हमारे सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से हम जूनियर्स के लिए अपनी जॉब करना काफी आसान हो गया है। उन अच्छे सीनियर्स में से एक हमारे शबीना मिस है। शबीना मिस का नेचर मेरे मुझसे शायद हर कोई एग्री करेगा कि शबीना मिस बहुत ही एक शांत और पुरस्कून नेचर थे। आपको अगर वो स्टाफ रूम में खामोश या परेशान या बीमार किसी भी हाल में पाएंगे तो आप सबसे पहले अपने बात में शबीना मिस को पाएंगे। वो आपको हर तरीके से मदद करेंगे कि वो आपकी ऑफिशियल कोई बात हो या प्रोफेशनल कोई डिफिकल्टी हो या पर्सनल डिफिकल्टी हो। आज की वो आने के बाद आपसे अपने बच्चों का हाल पूछते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स का हाल पूछते हैं, कि एक बहुत छोटी बात है लेकिन अपने आप में बहुत बदल सकती है। आज की बिजी लाइफ में अगर आप किसी और के फैमिली मेंबर्स के नाम, उनकी मिजाज, उनके पद, उनका सब लोग जानते हैं तो आप एक अच्छे इंसान, क्योंकि आज सब लोग बिजी है। अपना ही जानना, अपने मामला को हैंडल करना बहुत मुश्किल। लेकिन शबीना मिस हमेशा हमेशा वो हर एक की मदद करने के लिए हमेशा स्टाफ रूम में तैयार रहते थे, किसी भी तरीके से। वो मीठे बोली क्यों ना, क्योंकि आज आप लोग कोई मीठा बोली बोलते तो बहुत बड़ी बात। इसके अलावा मैडम के लिए ये भी कहना चाहूंगी कि वो एक अच्छी वालिदा भी है, उनके बच्चों से भी हमारा ताल्लुक हो चुका है। बच्चे बहुत बाइज्लाक है और उसका सबूत ये है कि आज उनकी बच्ची का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, कॉन्वोकेशन प्रोग्राम हुआ है, आज बच्ची डिग्री लेकर आई है। उस बात के लिए आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ मैडम। और इसके साथ में दोनों ही के लिए मैं पूरे स्टाफ की तरफ से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ में लंबी हयात दे और दोनों जहां की कामयाबी नसीब करे। और जब भी मैं देखता हूँ मुझे हौसला मिलता है कि एक शख्सियत के अंदर कितनी खूबियाँ जमा हो गई, चाहे वो अपने वालिदैन के कई जिम्मेदारियाँ हों या अपने बच्चों की कई जिम्मेदारियाँ हों या अपने बीवी के कई जो जिम्मेदारियाँ उन्होंने उसे कोई सिखाया तो बहुत सब किया है और अल्लाह किसी के अजर को ज़ाहिर नहीं करता। मैं दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके निजात फरमाए और उनकी आगे के राहें भी उसी तरह रोशन जैसे उन्होंने यहाँ कहा। तो बहुत ही खास शादी जनाब दस्तगीर मुबीन और मोहतरमा शबीना मुबीन साहिबा इदारे से सुबकदोश होने जा रहे हैं। दस्तगीर सर मई के आखिरी दिन और शबीना आपा अप्रैल के आखिरी दिन इस इदारे को रुखसत कह रहे हैं। हमारे जब मैं जेल साहब में बैठता था तो हम 3 लोगों को दस्तगीर सर, मोइन सर और इम्तियाज सर को तेरी मूर्ति बोला करते थे, क्योंकि इन तीनों साहिबान ने इस इदारे में ही तालीम हासिल की। इस इदारे में ही वो बतौर मौलिम जो है उनका तकल्लुम हुआ और यहाँ पर उन्होंने अपनी बदलती खिदमत अंजाम दी। तो आज उस तेरी मूर्ति की आखिरी मूर्ति की हमारे से रुखसत होने जा रही है। दस्तगीर सर और मेरे मदामी के एक जैसे थे, हम दोनों उर्दू पढ़ाया करते थे तो हम लोग काफी करीब थे। मैंने दस्तगीर सर से बहुत सीखा है। दस्तगीर सर हमेशा अपने जूनियर्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत नरम मिजाज के साथ, अगर आप उनसे कुछ भी पूछ लें तो आप जब तक पूरी तरह से मुतमईन ना हो आपको समझाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। कई दफा ऐसा हुआ कि जब असिस्टेंट हेडमास्टर बनने के बाद राउंड पर चले गए तो क्लास में देखा तो कोई टीचर नहीं है। अंदर जाकर धागा आवाज दिया तो लास्ट रो में दस्तगीर सर बच्चे के साथ बैठे हुए उनको किताबें सिखाते हुए नजर आए। तो ये दस्तगीर सर की खासियत रही है कि वो बच्चों के साथ उनके डेस्क पर बैठकर और उनको किस तरह से कट करना चाहिए, किस तरह से कौन सा अल्फाज लिखना चाहिए वो बताया करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत रही है। दस्तगीर सर ने कुल मिलाकर कमी बॉयज हाई स्कूल में 32 साल का वक्फा गुजारा। 3 साल वो बतौर तालिब इल्म यहाँ पर रहे और 29 साल बतौर उस्ताद उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी।
यानी इस बिल्डिंग में वो पिछले 32 सालों से मौजूद हैं और अगले कुछ महीनों में इनकी गैर मौजूदगी हमको बहुत खली। दस्तगीर सर पहले पीबस स्कूल में गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ साल पढ़ाया। उसके बाद उनका तकारुब रईस हाई स्कूल में हुआ और रईस हाई स्कूल से उनका ट्रांसफर रघुदीप पक्की बॉयज हाई स्कूल में हुआ। जब ये इन्होंने अपने तदरीसी सफर का आगाज किया तो ये एसएससी डीएड थे और इन्होंने नौकरी करते हुए 12th किया, बीए किया, बीएड किया और अब वो रिटायर होने से पहले एमए भी कर चुके हैं और अभी एमए बीएड के तौर पर जाकर रिटायर हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत है कि वो लगातार अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहे। दस्तगीर सर का एक और शौक था अखबार भी लिखना। जब मैं अपने शुरुआती दिनों में यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि दस्तगीर सर खाली पीरियड में अखबार में गर्क होते थे। मजाक में उनसे कहता था कि दस्तगीर सर अगर अखबार याद हो गया होगा तो आप मुझे भी दीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ, तो वो दे दिया करते थे। लेकिन मैंने आखिरी दिनों में एक तब्दीली महसूस किया कि जब भी मैं स्टाफ में गया दस्तगीर सर अखबार बिल्कुल छूते भी नहीं थे कि हाथ में मोबाइल होता था और यूट्यूब पर वो लगे हुए रहते थे, दिन भर यूट्यूब देखते थे। तो एक और उन्हें खुशायद तब्दीली देखने को मिली कि उन्होंने प्रिंट मीडिया से सोशल मीडिया का सफर भी तय कर दिया। खैर, दस्तगीर सर के ताल्लुक से मैंने देखा कि इतना साल मुझे इस इदारे में हुए, इतना सालों में किसी पेरेंट्स किसी बच्चे को लेकर किसी को मारपीट या किसी को बुरा कहना या कुछ मामला पेरेंट गुस्से में आया, कभी मैंने इनके ताल्लुक से नहीं देखा। बल्कि ऐसा होता था कि अगर किसी दूसरे असातिज़ा के ताल्लुक से कोई पेरेंट गुस्से में आते थे तो वो दस्तगीर सर के स्टूडेंट निकल जाते थे और हमको दस्तगीर सर को बुलाना पड़ता था कि आप आए, हम मामले को रफा दफा करें ताकि पेरेंट का गुस्सा कम हो जाए। तो ऐसा कई मामले दर्जनों मामलों को दस्तगीर सर ने अपनी मौजूदगी में रफा दफा कराया, जिसके लिए मैं उनका एहसानमंद रहूंगा और ये इदारा भी उनका एहसानमंद रहेगा। पर जिस तरह से उन्होंने अपनी वालिदा, अपनी ज़ौजा और अपने बेटे की खिदमत की, वाकई आज मैं बहुत एहतमाम के साथ कह सकता हूँ कि आज के दौर में एक जिंदा वली अगर आपको देखना है तो आप दस्तगीर सर को देख लीजिए। वाकई में वो बहुत जबरदस्त उन्होंने जो है मामले को हैंडल किया। अगर उसकी जगह दूसरा कोई भी होता तो वो जाता। मुझे दस्तगीर सर के हाथ का बना हुआ खाना खाने का भी इरादा हासिल है। आप एक अच्छी कुक भी है, हालात ने बना दिया है और उतना शौक तो नहीं है उन्हें पकाने का, लेकिन मजबूरी के तहत वो पकाते। एक दिन एसएससी बोर्ड में मॉडरेटर्स की मीटिंग में मुझे दस्तगीर सर को 3 बजे जाना था। मैं स्कूल में ही रुका हुआ था। दस्तगीर सर थोड़ी देर के लिए घर गए और मेरे लिए टिफिन लेकर आए। मैंने वो टिफिन खाया, अपनी बात में कहा कि खाना आपको कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा था। बोले मैंने बनाया। तो मेरे लिए ये भी एहसास है कि मैंने दस्तगीर सर के हाथ का बना हुआ खाना भी खाया है। सर से बहुत सीखा हूँ, सर से बहुत कुछ सीखते हूँ, बाकी भी है। लेकिन ऐसा है अभी कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि आपको रिटायर होना है। लेकिन मेरी और सुखी सर की शुभा ये बात की कि दस्तगीर सर अगर अगले 10 साल भी यहाँ पर रहते तो कोई उन्हें रिटायर नहीं समझ सकता। आज भी वो एक नौजवान की तरह उसी जोश और बदबदे के साथ काम कर रहे हैं। मैं दस्तगीर सर के लिए ये कहना चाहूंगा कि जिंदगानी भी तेरी महताब से तावंदा कर, खूब तक था सुबह के तारे से तेरा सफर। हमारी दूसरी स्थानी मोहतरमा शमीना मुकिम साहिबा आपकी इस इदारे से सुबकदोश हो रही थी। मैडम बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही केयरिंग नेचर की लगी है। मैंने कभी उन्हें गुस्से में नहीं पाया। जब मैं बतौर टीचर भी था तो आप बहुत ही शफकत से बात करते थे, बहुत ही अपनायत भरे लहजे में बात करते थे। जब मेरा रिश्ता हुआ तो पता चला कि मेरे ससुराल से उनके बहुत करीबी ताल्लुक है, वो पड़ोसी तो रही है उनकी, तो और ज्यादा वो मुझ पर मतलब मेहरबानी और अब भी अच्छे से बातचीत करने लगी। शबीना मैडम के ताल्लुक से भी मैं देखा कि हमेशा बच्चों को उन्होंने प्यार, मोहब्बत और अपनायत से ही पढ़ाया।
कुछ टीचर्स का होता है कि गुस्से की वजह से मामला आते हैं, और खुसूसन जब कोई टीचर 55 साल की उम्र क्रॉस कर देता है। मैंने मेरे रिटायर्ड सीनियर साथी यहाँ पर मौजूद है, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में एक बात हमेशा नोट किया कि 5 का फिगर जो क्रॉस कर जाता है फिर उसको अपने गुस्से पे काबू नहीं लगता, फिर उसके मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में इन दोनों ही साहिबान का कोई मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। इन्होंने अपनी खिदमत को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। मैं दोनों ही साहिबान का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मुस्तक़बिल में तंदुरुस्त रखे और इनसे अपनी खिदमत देता है। जाते जाते ये शेर दोनों की नजर करना चाहूँगा कि शाम दर शाम चलेंगे तेरी यादों के चराग, नस्ल दर नस्ल आपका काम बुलंद होगा। बहुत शुक्रिया। अपनी बॉयज हाई स्कूल का एक खासा है कि हम लोगों ने इस तकलीफ को ना सिर्फ इसका आहिया किया, इसका रिवाइवल किया, एक अच्छे अंदाज में इसको शुरू किया, बल्कि गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में इस तकलीफ को बाकायदगी के साथ में जब भी हमारे कोई साथी सुबकदोश हो रहे हैं अपनी तदरीसी या गैर तदरीसी खिदमत से, हम उनके एहसास में इस तकलीफ को पूरे एहतमाम के साथ में हमारे साथियों के ताउन से मुनाकिद करते आ रहे हैं। तो और अब दूसरे इदारों ने इस तकलीफ की नकल पर बाकायदा साथियता की इज्जत अफजाई का एक सिलसिला हमारे इदारे को देखकर शुरू किया है कि हमारे लिए एहसास की बात है। और इसमें इस तकलीफ में एक खास बात ये भी होती है कि तो जाने वाले साथी हैं वो अपने माजी के साथियों को जो उनसे पहले जा चुके हैं उन्हें भी याद करते हैं, उन्हें मदद करते हैं, बुलाते हैं। तो ये मौका भी होता है कि हम खुद अपने साबिक़ा साथियों से मुलाकात कर लें, से उनकी खबर खैरियत दरियाफ्त कर लें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ इस तकलीफ का एक हिस्सा होती है। और इसी सिलसिले में हमारे 3-4 साबिक़ साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। इस इदारे के लिए 35 से 40 बरस देना, यानी अपनी जिंदगी का जो है 3 हिस्से तकरीबन, जो जितनी जिंदगी हुई 58 बरस की आज तक, उसमें 3 हिस्से यहाँ पर दे देना इस माहौल में, ये तो गैर मामूली कारनामा होता है। इंसान रोज एक माहौल बनाए कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, और उसकी जिंदगी का वो रूटीन बन जाए, मामूल बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों साथियों ने, जिसमें हमारी शमीना आमा और गुलाम दस्तगीर मोमिन सर, ये दोनों के मैंने कुछ लोगों के रिटायरमेंट के वक्त तो जुमला जरूर कहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी इंतजामी जो खिदमत है तदरीस से हटकर, तो उसमें मैं तकरीबन 1.5 दहाई से अब यहाँ पर इस इदारे में कायम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने कुछ लोगों के वक्त ये जुमला जरूर कहा है कि मैं अगर कभी इस इदारे में पढ़ा होता तो इन लोगों का स्टूडेंट हो गया होता इत्तेफाकन। तो ऐसे ही साथियों में ये 2 लोग भी शामिल, क्योंकि मैंने 1987 में 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया था अपने शहर से, अपने गाँव से, और ये लोग 1986 से तकरीबन यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये बड़े एहसास की बात है। तो वाकई इनकी खिदमत को जो इन्होंने अंजाम दी है तदरीस की, बच्चों को पढ़ाने की, कौमों की तरबियत की, नौनिहालों को सिखाने की, उनकी जिंदगियां संवारने की, ये जो खिदमत इन्होंने अंजाम दी है इससे सलाम करना चाहिए। और किसी भी ऐसे इदारे को इसका शुक्रिया यकीनी तौर पर अदा करना चाहिए कि वो उन्हें याद करें। अभी एक तकरीर हुई थी गुज़िश्ता माह, जिसमें फहीम सर को और कुछ साबिक़ साथियों को मौजूद किया गया था। शहर के बहुत सारे उसमें स्टूडेंट्स शामिल थे जो आज लीडर हैं, कारपोरेटर्स हैं या ऊंचे ओहदों पर फायज हैं, आला ओहदों पर। तो उन लोगों को बुलाया गया था उसमें। उन लोगों ने इन लोगों को वहाँ पर मौजूद किया था किसी ढाबे पर, और वहाँ पर एक पुरवकार
कई लोगों के एजाज में मुनाफिक की गई थी, तो उसमें जाहिर है कि फहीम सर हमारे सुपरवाइजर जो मौजूदा हैं वो भी उसमें शरीक थे, लेकिन उनके साथ में अगर कोई सीनियर मोस्ट उस वक्त का जो स्टार वहाँ पर था वो गुलाम दस्तगीर मोमिन था। मैं इन दोनों जो साथी है हमारे जो आज अपनी तदरीसी खदमात से जो है रिटायर हो रहे हैं, बगदोश हो रहे हैं, मैं दोनों का इदारे की जानिब से, अपनी खुद की जानिब से और साथ ही साथ अपने KME सोसाइटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब वो रस्मी जुमले होंगे, जैसा कि हर कोई बोलता है कि उनको आधी रात को बुलाओ मैं आ जाऊँगा, तो मैं उन बातों को कहने का कभी भी हामी नहीं रहा, कोई आता वाता नहीं। अब जैसे अभी बुलाया गया, दावत दी गई, ये लोग आए हैं, साफ बोल रहा हूँ कि जिनको बुलाया गया वो बराबर आए, वरना हर शख्स की जगह दूसरा ले लेता, जाने वाले जाते हैं उनकी जगह पर नए आ जाते हैं, ये जिंदगी का दस्तूर है। इंसान दुनिया से जा रहा है तो भी लोग उसको क्षणिक लम्हों में, दिनों में, महीनों में भूल जाते हैं। लेकिन मैं क्या कहता कि भाई एक ताल्लुक है हमारा जो दुनिया में बना है। उसी बरेलवी के 4 विषय मुझको याद आ रहे हैं कि मैं उसके घर नहीं जाता वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मैं उसके घर नहीं जाता वो मेरे घर नहीं आता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बुरे अच्छे हो जैसे भी हैं सब रिश्ते यहीं के हैं, बुरे अच्छे हो जैसे भी हैं सब रिश्ते यहीं के हैं, किसी को साथ लेकर कोई दुनिया से नहीं जाता। तो जो ताल्लुक है दुनिया का, उस ताल्लुक को अच्छे से बनाए रखना, यही जो है हमारे इस इंसान होने की, मुसलमान होने की और एक गुफ्तार होने की, मौलिम होने की लाना चलते रहते हैं। अभी गुलाम दस्तगीर सर के ताल्लुक से बहुत सारी बातें ज्यादातर उन्हीं के ताल्लुक से हुई, शबीना आमा के ताल्लुक से भी हुई, मैं सबसे मुत्तफिक हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें समझते हैं ऐसे कि कुछ तो आम से होते हैं जो जिंदगी को जीते हुए निकलते चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत डेयरिंग से तमाम हालात का मुकाबला भी करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुतासिर दिखाई नहीं देते होते, अपनी दरवेश सिफत होते हैं, यानी कुछ भी हो उनके साथ में अच्छा हो या बुरा तो उसको वो झेलते हुए, उसका सामना करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले। मैं दरवेश सिफत का ये जो टर्म इस्तेमाल किया हूँ तो ये यकीनी तौर पर सादिक आता है हमारे गुलाम दस्तगीर मोमिन सर। मैं एक महीना पहले इसी वजह से इसकी बहुत तफसीली रिपोर्ट जो है एज ए हेडमास्टर लिख रहा था, टाइप कर रहा था लैपटॉप पे, तो बैठा मैं तो मुझको जरा सी भी तकलीफ नहीं गई। मैं जैसे ही इनके वो प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, हेडमास्टर है तो उसकी जिम्मेदारी उनका हिस्सा होता है। मैं इस दौरान में मुश्ताक रजा बोलिकर सर यहाँ पर हमारे तशरीफ लाए, उनकी दावत पर खास तौर पर उनसे एक मुद्देबाना है दरख्वास्त करके आप यहाँ पर आए आसिफ सर, इसको सर और बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ गए फिर मुझको कम करना पड़ा। ये एक अच्छे उस्ताद की एक अलामत होती कि जब वो लिखने बैठे उसके बारे में कोई तासुरात देने के लिए अपना काम शुरू करे तो उसको तकलीफ ना जाए, सोचना ना पड़े कभी मैं क्या लिखूं। कई बार मुझको ये एहसास कभी कभी हुआ है माजी में या ये 1.5 दहाई के तकरीबन अंते में कि मैं लिखने बैठा तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या लिखूं, लेकिन यहाँ पर मुझको बिल्कुल तकलीफ नहीं। और ये इस शख्स का यानी गुलाम दस्तगीर मोमिन सर का क्रेडिट और इसके लिए यकीनी तौर पे आपको तालियां बजाना चाहिए। मैं वो पॉइंट्स को नहीं एज ए हेडमास्टर जो बातें नोट की जाती हैं किसी एक जिम्मेदार होने के नाते उसमें वक्त की पाबंदी, साथ ही साथ लीव रुखसत से बचना, ओबीडियंस, लॉयल्टी यानी वफादारी अपने इदारे से, हेडमास्टर से, अपने सोसाइटी से और दीगर तमाम चीजें मैंने उनमें पाई। अपने साथियों के साथ तो उनका ताल्लुक जिसका जिक्र यहाँ पे शफी सर ने भी किया और वसीम अख्तर सर ने किया
या आसिफ सर ने किया, सभी ने तकरीबन किया और सब दोबारा अपनी जो पर्सनल गुफ्तगू है उसमें भी उसे याद रखते हैं। तो ये बातें वाकई सच्ची है और बहुत अहम है। मैं इन चीजों को की तौसीफ करता हूँ, इंडोर्स करता हूँ, ये बातें वाकई इनमें पाई गई है गुलाम दस्तगीर पर। मैं इसी वक्त में दरवेश सिफत इसलिए भी कहा कि मैंने वाकई इनको दरवेश पाया। मैं किसी जगह पर मेरा वैसा ताल्लुक नहीं है, ना मेरी तबीयत में राहबाना जो है वो कुछ मिजाज है मेरा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने कहीं पर मैं बैठा तो मैंने पाया कि ये रात में महफिल समा वगैरह कहीं पर होती है तो वहाँ पर जाया करते। मुझको पता है क्योंकि कुछ ताल्लुक तो ऐसे लोगों से मेरा था, तो मैंने देखा भी इनको कि शाम में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत चले जाया करते और उसका जिक्र किसी ने नहीं किया यहाँ पे, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने वो देखा। तो ये तबीयत असल में हमारा जो मिजाज बनता है वो मिजाज कब बनता है? आप देखें कि आज दुष्रवि, गुस्सा, झिझलाहट और तेज बोलना ये आम हो गया है, बहुत आम हो गया। और उस्ताद के लिए ये चीजें देर नहीं देती। देखिए मैं उस्ताद का लफ्ज इस्तेमाल तो हेडमास्टर का नहीं इस्तेमाल, मैं बुनियादी तौर पर उस्ताद, मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ कि ऐसे हेडमास्टर कुछ अलग जिम्मेदारियां हैं जिनको मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा मेरे होने पर रहते हुए, आखिरी तक। लेकिन टीचर रहते हुए उसको जेब नहीं देती। तो वो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी पाठदारी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गुलाम दस्तगीर सर ने की। उनमें ओबीडियंस इतना था कि वो जो घर के मसाइल जिनका जिक्र किया गया कि उसको मैंने किसी काम से एक मर्तबा भेजा। कई मर्तबा ऐसा होता था कि जब यहीं पे पड़ोस में रह रहे थे मस्जिद के बाजू में, तो मैं किसी हमारे सिपाही को भेजा कि भाई जल्दी सिग्नेचर वगैरह कुछ लेकर आओ। तो गए तो उन्होंने मुझको आकर बनाया कि सर आए थे बोले और हाथ जो है वो उनके आटे में गूंदे हुए। ये एक ऐसी यानी चीज है कि इनके घर वाले भी का ये कर्ज नहीं उठा सकते। मैंने अभी 4-8 दिन पहले किसी जगह पर जब मैं पर्सनल सर्विसर गुलाम दस्तगीर सर के साथ बैठा था तो मैंने वहां पर इस बात का जिक्र किया कि मैं इसको मौका आने पर जरूर कहूंगा कि कोड किए जाने चाहिए कि एक शख्स जो है स्कूल में भी पूरी खिदमत अंजाम देता है, पूरी वफादारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ, और एक शख्स जब घर जाता है तो घर का बन जाता है, अपने औलाद के लिए, अपने लोगों के लिए पूरा जिम्मेदार बनकर वो जो है वो एक घर का बड़ा होने का फर्ज फरीदा अदा करता है। ये बहुत काबिल तारीफ बात। उम्मा नाम ऐसा नहीं कर पाते। हमने लोगों ने यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, सबने देखा है ये जो होता है कई बार मदद लेनी पड़ती है। आप ड्यूटी कर रही हैं तो जेंट्स तो उससे रास्ता कम रख के ये सब चीजों ड्यूटी कर लिए हो गया, हमारी जिम्मेदारी बाहर की करते हैं। मैं कुछ जो मेरा रूटीन है घर में मैं बाहर से कुछ चीजें लाकर देता हूँ तो वो होता है। लेकिन लेडीज में भी ऐसा होता है कि हम थक गए हैं तो होता है और आराम करेंगे, या फिर घर में कोई काम वाली कोई लगती है तो वो काम करेगी। लेकिन गुलाम दस्तगीर सर जैसा कोई शख्स जब ऐसा पाया जाता है तो वो काम करे घर पर जाकर, तो उसके लिए कितने चैलेंजेस हैं ये चीज समझ में आता है। अरबी में उसके माना और उर्दू में 4 तरह से वो लिखते थे, जो मैंने शुरू किया था वो सिलसिला आज भी दीवार पर फर्स्ट फ्लोर पर जारी। तो वो सिलसिले को इन्होंने बिना नाका अंजाम किया। इसके अलावा पूना के लिए ये जब बच्चों के साथ भेजे जाते थे या कहीं भी किसी दूसरी जगह मुकाबले में, जो मैंने कम नहीं किया था, जुनैद साहब के वक्त का जो काम था वो मैंने उसको बदस्तूर इनके जिम्मे रखा था। वो काम इन्होंने आखिर तक जब तक वो सिलसिला जारी रहा जाने का बाहर, तो अहम रुकनी की हैसियत से इसलिए रखता था कि आप कुछ ना देखें, कोई तकलीफ ना सुने, कोई मामले बच्चे की तैयारी ना देखें, लेकिन बच्चे को जरूर देखें। और उसका जो काम था इन्होंने अदा किया माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह सर और शबीना आपकी खिदमत के लिए मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके लिए ढेरों दुआएं हैं, ख्वाहिशात, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान पर कायम रखे और ईमान पर हमारा खातिमा। और ये जो तकरीब है ये
सिलसिला जारी रहे। मुस्तकबिल में ऐसे लोग फिर से तैयार हो रहे हैं कि वो रिटायरमेंट की हद में पहुंच रहे हैं। तो हमारा ये जो काम है स्टाफ के ताल्लुक से वो कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब लोगों का जो है जो इज्तिमाई इनिशिएटिव है, कदम है, उन्होंने शुरू किया है और मिलकर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि स्कूल के लिए आपने ये जो काम शुरू किया है उसके वजह से बहुत सारी जो गुडविल है वो फैल रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में, और हमारे स्कूल ने जो अपना रैको कायम किया है कि मादिया करीब में, तो इंशाअल्लाह वो तकबीर में भी कायम रहेगा। मैं बहुत सारी दुआओं के साथ और शुक्रिया के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं किसी अदालत से सुबकदोश हो रही हूँ। मैंने अपने तदरीसी खिदमत के दौरान 4 हेड मास्टर की सरबराही में खिदमत अंजाम दी। इन तमाम की इस अदारे के लिए की जाने वाली कोशिश माशाअल्लाह काबिल तारीफ रही। दौरान तदरीस में एक उस्ताद का हक अदा करने की भरपूर कोशिश की। किसी भी किस्म की मेरी तरफ से मेरे साथियों की दिल आजारी हुई हो तो मुझे तहे दिल से माफ फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है हमें अपने फराइज का हक अदा करने वाला बनाए और हमारे अदालत को मजीद तरक्की अदा करे। कहने सुनने से ज्यादा मजीद अमल करने वाला बनाए। आप तमाम ने मेरे लिए वक्त निकाल कर इस कद्र एजाज बख्शा, इसके लिए मैं आपकी बेहद ममनून हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मुझे अपने गम का मदावा बनाए। जब मैं सोचता हूँ कि मैं यतीम क्यों हूँ तो मुझे मालूम होता है कि आप दुर्रे यतीम। मेरे जवान बेटे का इंतकाल क्यों हुआ तो एहसास होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबजादे बचपन में ही इंतकाल कर। इसके बाद मुझे अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेवा और पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद उसने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं एक मौलिम। मैं पहली से 7वीं तक तालीम स्कूल नंबर 7 में हासिल की, जहाँ पर हमारे मुश्ताक सर विषय उर्दू पढ़ा। उनकी जेर निगरानी में हमने ड्रामा भी किए और वो ड्रामा उस वक्त पूरे भिवंडी में मुकाबला हुआ था तो अव्वल नंबर पर आया था, और वही ड्रामा फिर रफीउद्दीन स्कूल के में उसको उधार लेकर यहाँ से रईस स्कूल में खेला गया। इसके राइटर डायरेक्टर दोनों मुश्ताक सर थे। इसके बाद 8वीं से 10वीं तक रफीउद्दीन स्कूल में तालीम के साथ साथ 3 बत्ती पर नेस्को टेलरिंग मटेरियल स्टोर, जहाँ वैरायटी स्टोर है, मैं वहाँ काम भी करता रहा। शुरू में मुझे रोज 2.5 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उसके बाद 3 रुपये रोज मिलने लगा। 1982 में एसएससी पास करने के बाद आरसी माहिम बीएड कॉलेज से डीएड पास किया। इस दौरान मुझे दरगाह रोड के मरहूम अब्दुल खालिक मोमिन हर महीना 100 रुपये वजीफा देते रहे। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि रिजल्ट भी नहीं आया था कि मुझे 1984 में यूएनडी विवर्स प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। सन 1984 से 1986 तक मैं यूएनडी विवर्स प्राइमरी स्कूल में 10 तदरीस के फराइज अंजाम देता रहा। वहाँ 3 हेड मिस्ट्रेस के मातहत काम किए। एक दिन के लिए मालेगांव की एक खातून हेड मिस्ट्रेस बनी। उसके बाद 1 साल नजमा अब्दुल कादिर अंसारी साहिबा हेड मिस्ट्रेस बनी। उसके बाद यास्मीन मोहम्मद रफी अंसारी साहिबा के जेर निगरानी काम करता रहा। 1986 से 1994 तक रईस हाई स्कूल में हेडमास्टर सुफियान सर की निगरानी में तलबा को पढ़ाता रहा। रईस हाई स्कूल के मरहूम फारूक सर और मरहूम बीवाई सैयद सर ने मुझे मजीद तालीम हासिल करने का मशवरा दिया।
उनके मशवरे पर अमल करते हुए मैं बीए फिर एमए पास किया। 1994 में मेरा ट्रांसफर रफीउद्दीन फकीह हाई स्कूल में हुआ। उस वक्त यहाँ की हेड मिस्ट्रेस नजमुन्निसा आपा थी। यहाँ मैंने यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ नासिक से बीए किया। 1997 में रफीउद्दीन फकीह बॉयज हाई स्कूल के हेडमास्टर जुनैद फकीह साहब बने और अब मोहम्मद शफीक फारूकी साहब के ज़ेर निगरानी स्कूल अपनी तरक्की की तरफ रवां दवा है। मैं अपने सातों हेड मास्टर साहिबान का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी निगरानी में मेरे अंदर मज़ीद निखार पैदा हुआ। उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। अलविदाई तकरीब का इस सिलसिला इस स्कूल में शकील सर ने शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और मेरी दुआ है कि आइंदा भी ये तकरीब मुनक़िद होती रहे। आज की इस अलविदाई तकरीब में मेरी बीवी और बच्चे भी शरीक हुए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ इस महफिल में मौजूद हैं। इस अलविदाई तकरीब में मौजूद और गैर मौजूद अपने सभी करम फरमाओं, दोस्त व अहबाब, मौलिद व मालूमात, दरसी व गैर दरसी स्टाफ और हॉल में मौजूद सभी मौसर साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस अलविदाई तकरीब का हिस्सा बने और इस महफिल को रौनक बख्शे। और मैं आपसे माफी का भी तलबगार हूँ कि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो, आपका दिल दिखाया हूँ तो बराए मेहरबानी मुझे माफ करना। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। आखिर में इस शेर के साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श वो फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श वो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। खुदा अपने स्कूल में मोहब्बत रहती है, रिटायर होने के बाद भी वो सोचते होंगे मुझे आज भी स्कूल जाना है। तो मैं समझता हूँ गलती से भी अपना स्कूल आ सकते हो तो आ सकते हो। आप लोग जो दरवाजे अब तक खुले हैं वो खुले रहेंगे। और जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का कि आपने हमेशा स्कूल के लिए बहुत अच्छा वक्त दिया, अच्छी तालीम दी बच्चों को। और शब्बीर सर मुस्कुरा रहे हैं, वो तो मैं समझता स्कूल की जान अहमान शान है। मैं समझता हूँ रिटायर होने के बाद भी वो यही मेरा जमाए रहेंगे, बच्चे का नाम नहीं लेंगे। तो अल्लाह करे कि हमारे स्कूल टीम दुर्मी शाह चौकी इसी तरह से तरक्की करते रहें। और जितने भी टीचर्स हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ तो हमेशा से बखूबी अपनी ड्यूटी अंजाम देते आ रहे हैं और अंजाम देते रहें। अल्लाह